So I welcome everybody. June 21 celebrations are on since morning. The theme this year is Yoga, One Earth, One Health. The word yog means union, and yoga is an exercise. It's a union of body, mind, and soul with the universe. Today, Delhi Menopause Society has organized this public awareness webinar to educate and encourage people of all ages to adopt yoga as a way of living. We have two wonderful talks lined up for you, highlighting the transformative power of yoga in fostering strength, resilience, and balance in women's life. We have with us two very famous personalities with us, Dr. Anita Shah and Dr. Ragini. I hope you all enjoy the deliberations and are motivated to incorporate yoga in your everyday's life now. I now request Dr. Anita, who is the President, Indian Menopause Society, and Dr. Ragini, who is Secretary General of Indian Menopause Society, for a few words. Dr. Anita, please. Yeah, thank you very much, dear Dr. Renuka, for giving this much honor to me. As you all know that today we all are celebrating the International Women Day. And you all must be knowing that under the banner of Indian Menopause Society, we started this celebration of yoga for last 10 days from Kolkata as well as from Rajkot headquarters. And we enjoyed every morning from 7 to 8 a.m. And those who had attended that, they must have enjoyed it very nicely. I just would like to say that yoga, it is an ancient practice combining physical postures, breath work, and meditation. Is very well known for joining body, mind, and soul. And as Renuka rightly told, that it is really a need of an hour for a midlife woman. Sarve bhavantu sukhi naha, sarve santu niramaya. Our Indian Menopause Society always wants that our slogan is fit at 40, strong at 60, and independent at 80. We want each and every woman of midlife should remain healthy and happy till the later age of her life. And that is only possible by holistic approach to them. And in holistic approach, we always combine our physical, mental, and spiritual health. And what else than yoga can lead this to a midlife woman. So I'm very happy for organizing this very unique webinar. And I'm sure that we have a very learned speaker and we will enjoy the session. Hand over to Ragini, my dear secretary, to say a few words of blessings. Ragini, please. डॉक्टर रेणुका हमारी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इसमें ज्वाइन करने के लिए। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार और इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। For me, if I think of the yoga, I will not say a yoga, but a yoga is your optimization goal for a happy, healthy life, not only menopause. And it is more important when you enter in a menopause transition and in a menopause, because at this time, connection of body, mind, soul is so important, and our spiritualism is a part, should be part of life. Having a good physical health, mental health, and spiritual health is a necessary element of a good life after 50. So for that, importance of nutrition and exercise is very necessary, and you have very unique way of celebrating Yoga Day. You are focusing on these things. Many congratulations, and I hope whoever is here will be benefited by this. Thank you so much. I think Dr. Preeti, take over now, please. Yeah. Thank you, ma'am. As we start today's session with Yoga in Menopause, it is my privilege to introduce Dr. Indu Sharma. She is Assistant Professor in Yoga Education with Morarji Desai Institute of Yoga, New Delhi. Madam has acquired a PhD degree in yoga and has a postgraduate degree in both yoga as well as psychology. She has more than 16 years of experience in teaching yoga, and she has several contributions in various yoga books.
Dr. Indu Sharma has several research papers on yoga to her credit and has multiple presentations in national and international conferences. I now hand over the session to Dr. Indu Sharma, please. थैंक यू मैडम। सबसे पहले मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज मैं दिल्ली मेनोपॉज सोसाइटी के बीच अपना एक योगदान प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसके लिए मैं डॉक्टर रेणुका मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आप सभी के साथ अपना ये अनुभव साझा कर पाऊं। तो एक बार मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। जो व्यक्ति प्रतिभाग कर रहे हैं इस सोसाइटी में, इस कार्यक्रम में, उन सभी को भी मेरा प्रणाम। तो आइए प्रार्थना से मैं अपने व्याख्यान को प्रारंभ करूंगी। प्रार्थना के लिए सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, आंखों को कोमलता से बंद करें। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए, जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरा मूल विषय योग है, तो मेनोपॉज में किस प्रकार से योग की क्रियाएं हमें प्रभावित करती हैं और कैसे हम योग अभ्यास से लाभान्वित हो सकते हैं, इस विषय पे मैं आज प्रकाश डालना चाहूंगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सबसे पहले हम चर्चा करना चाहेंगे कि एक वुमेन है क्या। ये पिक्चर मैंने एक ब्लैंक रखा है। अगर सब अपने विचार साझा करना चाहें तो मैं जानना चाहूंगी कि ये पिक्चर को देख के उन्हें क्या लगता है। क्या ये पॉसिबल है कि ऑडियंस उसको शेयर कर पाए अपने थॉट? नहीं। ओके, कोई बात नहीं, कर पाएंगे। ये एक विषय है जिसमें हम अपने कलर भर सकते हैं। इसको मैंने ब्लैंक इसीलिए रखा है कि हर कोई अपने नजरिए से, अपने विचार से, अपनी समझ से ये बताए कि इसमें क्या दिख रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैंने जब सोचा कि एक स्त्री, एक महिला क्या है उसमें, तो मुझे कुछ चीजें मेरे थॉट में आई, तो मैंने पिक्चराइज करने का ट्राई किया है कि अगर हम एक डेफिनेशन के रूप में महिला को देखें, वुमेन को देखें, तो एक परिवार का आधार होती है, मेरुदंड होती है एक महिला। और अगर हम अपने अध्यात्म में देखें तो वहां पे शिव की अर्धांगिनी, शिव के दो पूरे एक शरीर में आधा शरीर स्त्री का, आधा शरीर पुरुष का होता है। तो शिव के स्वरूप में हम अर्धनारेश्वर का स्वरूप देखते हैं। तो वहां पे भी हमारे स्त्री की महिमा का बखान हमें मिलता है। ऐसे ही जब हम अपनी देश को देखते हैं, धरती को देखते हैं, तो माँ के रूप में हम भारत माता के को एड्रेस करते हुए बोलते हैं, और धरती माँ कह के उसको एड्रेस करते हैं। तो वो भी एक फीमेल के रूप में हम देखते हैं। और एक महिला ही है, एक माँ ही है जो कि एक बच्चे की पहली गुरु बोली जाती है। ये सब विचार मेरे नहीं है, ये सब वो विचार हैं जो जन समाज में हर कोई व्यक्ति इनसे एग्री करता है। तो एक परिवार को जोड़ने का काम जो करती है एक महिला करती है। हम कह सकते हैं कि एक अमूल्य बहुमूल्य रत्न के रूप में एक महिला की पहचान हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे देश में है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कुछ पिक्चर्स मैंने सामने रखी हैं। ये ऐसे ऐसे दिग्गज हुए हैं, ऐसी दिग्गज महिलाएं हुए हैं जिनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है ना। उन्होंने अपने दम पे अपना एक मुकाम हासिल किया और एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का हमें परिचय दिया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वह हर एक पहुंच पे महिला पहुंची है, अपने सामर्थ्य से, अपने बल से, अपनी शक्ति से,
जो कि एक कभी किसी के लिए सपना हुआ करता था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अगर हम एक महिला की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो फैमिली में एक महत्वपूर्ण रोल महिला अदा करती है। एक पर्सनल लेवल में उसका एक अपना व्यक्तित्व होता है, साथ ही वो समाज में भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऐसे में उसकी जो स्ट्रेंथ बनती है, उसकी स्ट्रेंथ होती है सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस और उसका स्किल, जो उसको अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए मदद करता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करेंगे एक महिला के उस आयाम की जो अपना, जब वो जन्म लेती है तब से बड़े होने तक वो महत्वपूर्ण फेज से गुजरती है, महत्वपूर्ण पड़ाव को पार करती है। जब जब स्टार्टिंग होती है, वो ग्रो करना शुरू करती है, तो प्यूबर्टी टाइम, फिर मैरिज टाइम आता है, फिर प्रेगनेंसी टाइम आता है, फिर प्रीनेटल टाइम, फिर आफ्टर प्रेगनेंसी कुछ सिम्टम्स, कुछ उसके शारीरिक मानसिक चेंजेस आते हैं। उसके बाद मेनोपॉज का एक टाइम वो फेस करती है। और ये वह स्थिति है, परिस्थिति है जो एक हर महिला इस पड़ाव से गुजरती है। जो भगवान ने, ईश्वर ने जब स्त्री शरीर की रचना करी तो ये स्वाभाविक रूप से उसके शरीर में ये परिवर्तन, ये बदलाव सहज है, जिनके साथ वो रहते हुए अपनी परफॉर्मेंस देती है। और जैसे कि मैंने पूर्व में कुछ स्लाइड में कुछ व्यक्तित्व दिखाए, उन्होंने इन सब के बावजूद अपना एक मुकाम हासिल किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आज का हमारा विषय है मेनोपॉज, है ना, तो उसमें अगर हम बात करें तो कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे आप सभी को सभी उससे अवगत होंगे। हॉट फ्लैशेस, जो कि बहुत पेनफुल है, फिजिकल सिम्टम्स हैं जो कि बहुत सहज नहीं है हर किसी के लिए, जिनको सहना, उनको बेयर करना ये एक टास्क होता है, लेकिन वह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो इसीलिए हर स्त्री, हर महिला इसको फेस करती है और उससे जूझती है, उसका सामना करती है। तो हॉट फ्लैशेस हुए, उसके साथ ही साथ वजाइनल ड्राइनेस और फटीग, और बोन्स क्योंकि वीक हो जाते हैं तो उससे रिलेटेड उसकी प्रॉब्लम्स, और हेयर की ड्राइनेस और स्लीप डिस्टर्बेंस, ये सारा उसका फिजिकल सिम्टम्स रहता है, जो स्वाभाविक है कि जब वो फेज आएगा तो वो फेस करेगा ही, करेगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये केवल शारीरिक स्तर तक सीमित नहीं रहता, साइकोलॉजिकल, मानसिक स्तर भी इससे प्रभावित होता है, जिसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जब एक विचार कोई मन में आता है, न चाहते हुए भी बार बार वो थॉट, बार बार वो विचार रिपीटेडली क्रिएट होता है, जिसके कारण से अनावश्यक रूप से वह स्त्री, वह महिला मानसिक रूप से परेशान होती है और शरीर में उसके लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही साथ मूड स्विंग होना, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, और ये सारे सिम्टम्स ऐसे हैं जो एक स्वाभाविक है कि अगर वो फेज आएगा तो शारीरिक और मानसिक रूप से वो प्रभावित होगी ही होगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम बात करेंगे कि ये जो सिम्टम्स हैं, ये जो स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये तो होना ही है जैसी वाली बात करके हम जब एक्सेप्ट करते हैं, तो उसमें योग किस तरह से हमें सहायता दे सकता है कि कैसे उस पड़ाव को हम बहुत हेल्दी वे में बेयर कर पाए, हेल्दी वे में उसका सामना कर पाए, और जिससे जो उसके सिम्टम्स है वो हमें परेशान ना करके हम सहज रूप से उस समस्या का समाधान कर पाए। तो उसमें योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये पिक्चर्स मैंने योग के स्वरूप को दर्शाने के लिए सामने लगाई है। तो जैसे ही पिक्चर में दिख रहा है कि योग हमें एक गहराई प्रदान करता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल से, इंटेलेक्चुअल लेवल से मूव करता हुआ स्पिरिचुअल लेवल तक की ग्रोथ, और वो लेवल अचीव कराने में योग की प्रैक्टिसेस हमें सपोर्ट करती हैं। तो वही जैसे समुद्र में गहराई होती है, हम जितनी गहराई में उतरते हैं उतना ही कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया अनुभव मिलता है। ऐसे ही योग में हम जितनी गहराई में उतरेंगे उतना ही एक नया अनुभव हम प्राप्त करेंगे। जो खूबसूरती इस पिक्चर में दिख रही है, कलरफुल विजन दिख रहा है, वही जीवन है, वो योग, वो आनंदमय जीवन, सुखमय जीवन योग के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें एक बोरिंग लाइफ में भी, डिप्रेस लाइफ में भी हम रंगों को भर के उमंगता को हासिल कर सकते हैं। खजाने की बात करें तो आत्म स्वरूप से को जानना, पहचानना, और अगर हम हेल्थ की बात करें तो एक हेल्दी लाइफ से बढ़कर हमारे जीवन में और कुछ नहीं है। अगर हमें वाकई में लाइफ को एंजॉय करना है
उसके लिए बहुत जरूरी है, कहते भी हैं हेल्थ इज वेल्थ। अगर शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अगर अच्छा है, हम स्वस्थ हैं, तो ही हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। बीमार शरीर में, बीमार मन में हम एंजॉय नहीं कर सकते, जीवन का आनंद नहीं ले सकते। कितना भी अच्छा माहौल क्यों ना हो, अगर हम मन से पीड़ित हैं, शरीर से पीड़ित है, तो हमारे लिए कोई भी चीज सुखमय नहीं होती। तो योग एक ऐसे ही हेल्पिंग हैंड या ऐसे ही विधा के रूप में हमारे सामने है। भारतीय संस्कृति परंपरा है, यदि हम इसको अपनाते हैं तो निश्चित मानिए आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। जब भी एक दर्शन उत्पन्न होता है, उसका पर्पस रहता है दुख निवृत्ति, सुख प्रवृत्ति, दुख निवृत्ति। हमें सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, दुख से छुटकारा चाहिए और सुख की चाहत हम रखते हैं, तो उसके लिए एक सार्थक उपाय हमारा ज्ञान है, दर्शन है। उसी में योग दर्शन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे बढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ योग की अगर हम बात करते हैं तो एक डेफिनेशन महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में दी, योगश चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, यानी कि मॉडिफिकेशंस ऑफ माइंड। जब हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं तब हम स्थिर हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं। वो स्थिरता, एकाग्रता हमें सेल्फ रियलाइजेशन में सपोर्ट करती है। जब हम सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं तो रियल वे में हम अपनी स्ट्रेंथ को जान पाते हैं कि हम वाकई में हैं क्या हमारा शरीर तक ही हमारा स्वरूप है। ये 6 फुट 5 फुट का जो शरीर है, ये फिजिकल बॉडी है, कि हम सुबह उठ रहे हैं, रात को सो रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं, कि यहीं तक हमारा जीवन है, यहीं तक हमारी क्षमताएं हैं, या इससे भी बढ़कर कुछ है। तो अगर उससे बढ़कर कुछ है तो हमारा स्वयं का स्वरूप, वो चेतना, वो कॉन्शियसनेस, वो हायर कॉन्शियसनेस जो हमें चला रही है, उसको हमें जानने की जरूरत है और उसकी पावर, उसकी स्ट्रेंथ को जानने की जरूरत है। तो योग हमें वो सिखाता है कि कैसे हम स्वयं की शक्तियों को जानें और कैसे हम उनका पूर्ण लाभ लेके अपने आप को लाभान्वित करें, अपने समाज को लाभान्वित करें, अपने देश विश्व का मान रोशन करें। तो उसमें योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लिए क्योंकि हम सभी कर्मठ हैं, जितने भी ये सोसाइटी में जुड़े हैं, मैं देख रही हूँ सब डॉक्टर्स हैं, सभी अपनी समाज के प्रति, देश के प्रति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम सभी का ये दायित्व है कि जो हमें पावर मिली है, जो कर्तव्य मिला है, हम उसको पूर्ण निष्ठा से निर्वाह करें। केवल डॉक्टर्स ही नहीं, हर क्षेत्र की बात मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे कर्म का सिद्धांत काम करता है। हम कर्म कैसा करें, बिना कर्म करे कोई नहीं रह सकता। एक बच्चा भी पैदा होता है, पैदा होते ही वह क्या करता है, रोता है। वो जब रोता है उसको फीड कराया जाता है। अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए हर कोई काम कर रहा है, पर क्या उस कार्य से हम खुश हैं? हमारा जीवन खुशहाल है? हम स्वयं के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति क्या पूर्ण रूप से वो दायित्व निभा पा रहे हैं जो हमें निभाना चाहिए? तो उस चीज के मद्देनजर हम कहेंगे अगर कहीं कमी है तो हमें योग की तरफ देखना चाहिए। योगा कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। हम कैसा कर्म करें कि हमें सुखमय जीवन प्राप्त हो, हम स्वयं को भी खुश रख सकें, दूसरों को भी खुश रख सकें। तो यहाँ पर कहते हैं निष्काम भाव से कर्म करना। कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं रखनी है। हम कर्म करते हैं मनो अनुचित, हमें जितना चाहिए, जैसा चाहिए वो फल नहीं मिला, हम दुखी हो जाते हैं। तो हमें कर्तव्य करना है, अपना जो जिम्मेदारी है उसका निर्वाह करना है। हमें मनोनुकूल अगर रिजल्ट नहीं भी मिला तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें खुद को एंजाइटी में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में डालने की जरूरत नहीं है। हम आगे और फॉरवर्ड और कर्तव्य निष्ठा से और पूरे स्ट्रेंथ से काम कर और अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा, क्योंकि ये कर्म का सिद्धांत है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि निष्काम कर्म करेंगे तो फल तो मिलना ही नहीं है, तो काम क्यों करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कर्म तो हम करेंगे ही करेंगे, बिना कर्म करे हम रह नहीं सकते। लेकिन हम जो निष्काम भाव से जनहित के लिए, जन सेवा के लिए जो कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका जो इफेक्ट, जो संस्कार हमारे अंदर पड़ेगा, वो हमें प्योर करेगा। वो प्योरिटी हमें हैप्पीनेस देती है, वो प्योरिटी हमें वो सेल्फ रियलाइजेशन देती है जिससे हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाते हैं। तो हम उस वे में, उस नजरिए से योग की विधा को देखें, योग की शक्तियों को देखें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आज की वे में अगर सरल भाषा में हम योग को समझना चाहें तो योग क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग। दिनचर्या, ऋतुचर्या, हमें हमारी लाइफ स्टाइल कैसी रखनी है, हमारा दिन शुरू उठने से लेकर रात्रि सोने तक कैसा होना चाहिए। रात्रिचर्या भी होती है, हमें सोने का स्टाइल क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमें नींद लेने के लिए अपने आप को तैयार
करना चाहिए। यही कारण है कि इसमें डिस्टरबेंस के कारण इंसोम्निया डिजीज से लोग परेशान हो रहे हैं। बहुत कमा रहे हैं, बहुत ऊंचे पद पर हैं, लेकिन रातों को नींद नहीं आती। बहुत धनवान है, बहुत नेम फेम है, लेकिन रातों को नींद नहीं आती, नींद उड़ गई है ना, परेशान है। कई कई लोग ऐसे हैं जो महीनों से सोते नहीं है, करवटें बदलते रहते हैं, लेकिन जो नींद आनी चाहिए वो नहीं आने के कारण मानसिक विक्षोभ, मानसिक समस्या, शारीरिक समस्या का वो सामना कर रहे हैं। तो हमें आर्ट ऑफ लिविंग, ये योग के माध्यम से हम सीखते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए और किस तरह से हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। स्टेट ऑफ कंप्लीट अवेयरनेस, है ना, सजगता। कहते हैं हम जीवन जी तो रहे हैं, तो क्या जिस समय पे हम जहां पर हैं वहां पर पूर्ण रूप से हैं? बहुत कम लोग ऐसे होंगे। अगर वास्तविक रूप से देखें, हम शरीर से तो बैठे हैं, लेकिन मन से बहुत सारे ख्यालों की बुनाई चल रही है, बहुत सारी प्लानिंग चल रही है, बहुत सारे ख्याल मन में आ रहे हैं। तो वास्तविक रूप से हम शारीरिक स्थिति में होते हुए भी मन से वहां पर स्थित नहीं होते। योग हमें वो अवेयरनेस देता है कि पूरी सजगता के साथ हम जहां पर जो काम करें, जैसा काम करें, जिस स्थिति में हो, शारीरिक रूप से भी वही हो और मानसिक रूप से भी वही हो। ये तभी हमें रिजल्ट भी 100% मिलता है। अदरवाइज हम बोलते हैं हमने पूरा काम किया लेकिन हमें रिजल्ट तो मिला ही नहीं, इसीलिए हम सैड हो गए, इसीलिए हमें निराशा का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जरूरी है कि वो अवेयरनेस हमारे अंदर हो। क्या हम शरीर के साथ साथ मन से भी उस कार्य को कर रहे हैं? क्या हम मन से भी उस जगह पे स्थित हैं जो कार्य हम करना चाह रहे हैं उसमें हम कितना योगदान कर पा रहे हैं? तो वो अवेयरनेस, जैसे हम कहते हैं कि ये सूरज चमकता है, सूरज की किरणें सबके लिए समान होती हैं, लेकिन हम आतिशीय शीशे से अगर सूरज की किरणों को एकत्रित कर दें तो अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे ही है, हम जीवन जी रहे हैं लेकिन अपनी शक्तियों को, क्षमताओं को हमने फैला रखा है, कहीं पे फोकस ही नहीं हो पा रहा है। अगर हम उन शक्तियों को फोकस करें, एकाग्र करें, एकजुट करें, फिर उसको प्रोजेक्ट करें, तो निश्चित रूप से जो रिजल्ट आएगा वो सराहनीय होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रिलेवेंस ऑफ योगा इन वुमेन, है ना, तो ये इस सेल्फ मैनेजमेंट के लिए अगर पर्सनल लेवल में देखें तो सेल्फ मैनेजमेंट के लिए और सेल्फ को अपने लिए और आउटर वर्ल्ड के लिए जो उसकी परफॉर्मेंस है, भूमिका है, उसमें अपना रोल प्ले करने के लिए एक महिला के लिए योग बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। क्योंकि महिला अगर जॉब में है, ये सारे मतलब जो मैडम्स हमारे सामने हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी महिलाएं हैं, तो वो निश्चित रूप से एक समाज में अपना योगदान दे रही हैं, अपनी फैमिली में दे रही हैं और अपने लिए भी समय निकाल रहे हैं। तो अभी देखिए, हर एक कोई इसी नजरिए से सोचे तो सर्वांगीण रूप से वो अपना योगदान दे रहे हैं। तो फिजिकल लेवल में परेशानियों में, चाहे साइकोलॉजिकल लेवल में परेशानियों में, हर एक महिला अपने आप को स्वस्थ रख सकती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर हम फैमिली लेवल में देखें तो बहुत सारी चीजें हैं जो एडजस्टमेंट लेवल पे, टाइम मैनेजमेंट, वर्क एफिशिएंसी और नरिशिंग फैमिली, जैसे मैंने पहले भी बोला, हर कोई अपनी भूमिका उसमें निभा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऐसे ही सोशल लेवल में अभी जो वर्किंग वुमेन है वो पूरा सोशल लेवल में सोसाइटी के लिए, अभी तो ये वेलफेयर सोसाइटी के तहत हम जो जुड़े हैं एक दूसरे से, तो कितना अपना प्रोफेशन के अलावा भी बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज ऐसी कर रहे हैं जिनसे कि जिनमें वो इन्वॉल्व है और अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उसमें फैमिली के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक नजरिया है कि चूंकि फर्स्ट जो टीचर है एक बच्चे की वो फीमेल ही है, और उसकी जिम्मेदारी जब अपने बच्चे को गाइड करती है, तैयार करती है, उसको बड़ा करती है अच्छे संस्कारों के साथ, तो एक देश के लिए अच्छा नागरिक भी तैयार करती है। तो उसके लिए भी जो नजरिया है, जो देखा जाता है, तो माँ की तरफ ही देखा जाता है। बोला जाता है अगर कोई बच्चा गलती करता भी है तो सबसे पहले उसको एड्रेस माँ के लिए करा जाता है कि आपने इसे अच्छा नहीं सिखाया, और अगर अच्छा करता है उसका श्रेय भी माँ को दिया जाता है कि आपने इसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। तो वहां पर भी बहुत महत्वपूर्ण और आशा के साथ उस स्त्री, उस माँ के प्रति नजरिया जाता है कि वो कैसा समाज आगे विकसित करने में सहायता या भूमिका निभा रही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसी के साथ साथ जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल हर लेवल में योग अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक महिला के विकास में, विकसित होने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। नेक्स्ट स्लाइड।
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो योग का जो इफेक्ट देखते हैं, हम होलिस्टिक हेल्थ डेवलपमेंट में कुछ प्रैक्टिसेस की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने षटकर्म लगाया है, क्लींजिंग प्रैक्टिसेस, धौतिर वस्ती तथा नीति, त्राटकम लौलिकी तथा कपाल भाती चैतानी षटकर्मानी समाचरे। तो कहा जाता है सबसे पहले क्लींजिंग जरूरी है। अगर गंदगी है, गंदगी में कुछ हम अच्छा भी करना चाहें तो वो अच्छा डेवलप होने में बहुत समय लग जाता है। ऐसे ही हमारा शरीर है, ये गंदगी का भंडार है। अगर हम बोले बाह्य स्वरूप से तो हम इसे जितना सजा लें, पर हमें पता है कि अगर हम ये स्किन को हटाएं तो हम अपने स्वरूप को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। और 9 द्वार का कॉन्सेप्ट हमारे योग में आता है। 9 द्वार यानी कि छेद, है ना। कहते हैं जो चेतना है वो ब्रह्म है, वो इन 9 द्वारों से ही प्रवेश करता है और इन 9 द्वारों से ही वो चेतना अंत में मृत्यु समय पे बाहर जाती है। तो क्या है, आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, मल मूत्र द्वार है, ये सब छेद जो है, यहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं निकलता जिसे हम बोले ये तो हमारे शरीर का ही पार्ट है, हमारे शरीर की ही चीज है, इसे हमें संभाल के रखना चाहिए। गंदगी ही गंदगी है। अगर हम नहाए ना तो स्वेटिंग के कारण हम अगर अपने आप को पसंद नहीं करेंगे, है ना। दूसरा हमारे पास बैठना पसंद नहीं करेगा। मल मूत्र द्वार, बदबू ही बदबू, गंदगी ही गंदगी, है ना। आंखों से गंदगी, नाक से गंदगी, मुंह से गंदगी, कानों से गंदगी, जिसकी सफाई के लिए हम नित्य प्रति एक नियम बनाए हैं कि उठो तो ब्रश करो, है ना, अपना अच्छे से क्लीनिंग करो, प्रॉपर नहाओ। तो ये सारी शुद्धि के साथ साथ योग दर्शन में, योग में 6 क्रियाओं का विधान बताया गया। नेति करो, तो नॉस्ट्रल में हम पानी डाल के और सूत्र से इसका अभ्यास करते हैं, है ना। तो अपर, ये कंधे से ऊपर के जो भाग है ना, इसे नेति कहा जाता है संस्कृत में, तो वहां की सफाई का काम करता है। वस्त्र धोती, 5 मीटर लंबे वस्त्र की एक लंबी पट्टी को हम खाते हैं, एब्डोमिनल में उसे नौली के साथ घुमाते हैं तो एक्सेस म्यूकस जो है वो उसमें लग जाता है और फिर बाहर उसको खींच के कपड़े के माध्यम से वो पेट की सफाई हो जाती है। एनिमा, वस्ती उसे कहा जाता है जब कॉन्स्टिपेशन होता है। कहते हैं कॉन्स्टिपेशन समस्त रोगों की जननी है ना। तो वो आंत की सफाई, ताकि मल द्वार से जो कठोर हो गया है मल, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, पानी को अंदर डाल के उसको ढीला किया जाता है जिससे कि वो आंत की सफाई हो जाती है। ऐसी आंखों की शुद्धि के लिए त्राटक, है ना, कॉन्सेंट्रेट हम एक पॉइंट पे फोकस करते हैं। ज्योति त्राटक, घी के दिया पे जल जल के अगर हम करते हैं तो हमारे लिए लाभदायक होता है। केवल शरीर नहीं, मन को भी प्रभावित करता है। मन की शुद्धियां, कहते हैं इमोशनल जो गांठें, नोट्स हमारे अंदर बन जाती हैं। भावनात्मक कुंठाएं, कि मानसिक रोगों का मूल कारण क्या है, भावनात्मक विक्षोभ। हम भावना से कहीं ना कहीं पीड़ित हो गए हैं, भावनाएं गांठें के रूप में बन गई है, उसको खोलने का काम त्राटक करता है। ऐसे ही कपाल भाती जो जन विख्यात है ना, वायु के माध्यम से बार बार स्ट्रोक लगाते हैं जिससे कि हमारा एब्डोमिनल रीजन बार बार अंदर की तरफ प्रेस होता है, तो उसमें भी कपाल की शुद्धि की जाती है, मस्तिष्क एक्टिव हो जाता है और शारीरिक क्षमताएं तो बढ़ती हैं, वो अलग हैं। तो नॉली जो रेक्टम मसल्स को हम रोटेट करते हैं तो पेट की मांसपेशियों की मसाज हो जाती है, आंतों की मसाज हो जाती है, तो समस्याएं, आंतरिक समस्याएं सारी खत्म हो जाती हैं। इनका नियमित अभ्यास हमें करना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखें योग की समस्त प्रैक्टिसेस एक योग्य गुरु के निर्देशन में ही होनी चाहिए। देखा देखी कीना योग, छिजी काया बाढ़े रोग। देखा देखी अगर हम करते हैं तो वो शरीर पे भी नुकसान आता है, रोग भी बढ़ जाते हैं, है ना। तो हमें अच्छे से सीख के इनका अभ्यास करना चाहिए, तभी लाभ मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ प्रैक्टिसेस जो मैंने अभी बताई। नेक्स्ट कुछ आसन है, ये पिक्चर्स में आपके सामने दिखा रही हूँ। ताड़ आसन है, वृक्ष आसन है, अर्ध चक्रासन है, उत्कट आसन है, पादहस्त आसन है, त्रिकोण आसन है। ये सभी फेवरेबल है महिलाओं के लिए, है ना। हमारी जो समस्त समस्याएं हैं, उन समस्त समस्याओं का समाधान योग में है। तो सबसे पहले शुद्धि करी हमने, शरीर की गंदगी को बाहर निकाल दिया, उसके बाद हम शारीरिक क्षमता को बढ़ाएंगे, है ना। जो फटीग है, जो मसल्स की कमजोरी है, बोन्स की जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ रहा है, बोन्स वीक हो रही हैं, तो मसल्स को स्ट्रांग बनाएंगे तो हमारा स्केलेटल भी अच्छे से काम करेगा, है ना। अस्थि तंत्रिका तंत्र जो है हमारा, वो भी अच्छे से काम करेगा। तो ये कुछ अभ्यास हैं जो हमारे शरीर को अच्छा बनाए रखने के लिए जरूरी है। पर ध्यान रखें, जब भी पीछे मुड़ने का अभ्यास करें, आगे मुड़ने का अभ्यास भी जरूर करें। राइट साइड मुड़ रहे हैं
तो लेफ्ट साइड भी जरूर ट्विस्ट हो, तो समान रूप से हमारी मांसपेशियां विकसित होंगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये लोअर एब्डोमिनल पे स्पेसिफिकली इफेक्ट डालने वाली प्रैक्टिसेस महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चाहे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो, मेनोपॉज हो, आफ्टर प्रेगनेंसी, ये सारे अभ्यास अगर एक महिला करती है अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रख सकती है। ऑर्गन डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए भी ये समस्त अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। तो ये भद्रासन है, उत्तान पाद आसन है, पर्वत आसन है, शलभ आसन है, भुजंग आसन है, अर्ध हलासन है, सर्वांग आसन है, मत्स्य आसन है, मार्जरी आसन है। ये सारे आसन क्षमता अनुसार आप करें, योग्य गुरु के निर्देशन में करें, तो मानिए आपका लंबर पेन के रिगार्डिंग, मसल्स का वीकनेस होना और लोअर एब्डोमिनल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, मेनोपॉज, ये सारा कुछ आप इससे लाभान्वित होंगे। समस्त रोगों की एक ही दवाई की बात मैं कर रही हूँ आपके सामने। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ध्यान, मेडिटेशन, है ना, इसके लिए ये ध्यानात्मक आसन, चाहे अगर आप पद्मासन आदि नहीं भी लगा सकते हैं तो आप सुखासन में बैठ के इसका अभ्यास कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। कुछ प्राणायाम की प्रक्रिया है, क्योंकि जैसे हमने पहले बात करी, स्ट्रेस, एंजाइटी, है ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और ये सारी चीजें जो हमारा नींद, स्लीप में भी डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, तो आप प्राणायाम करते हैं तो प्राण प्लस आयाम, प्राण मतलब वाइटल एनर्जी, है ना, उस शक्ति को हम अपने अंदर बढ़ाएं। वो शक्ति जितनी ज्यादा रहेगी, प्राण जितना ज्यादा रहेगा, हम उतने ही स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आराम देने वाले अभ्यास हैं, तनाव को दूर करने वाले, चिंताओं को दूर करने वाले, तो वो अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम का मैं यहाँ बता रही हूँ। शीतली प्राणायाम सिद्धकारी कूलिंग इफेक्ट है, आजकल गर्मियां हैं, आजकल अगर हम रोज इसका अभ्यास करते हैं तो ठंडक प्रदान करने वाले अभ्यास है। इंसोम्निया, हाइपर एक्टिवनेस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अराउज हो जाता है, रिलैक्स नहीं हो रहा है माइंड, जिसके कारण से नींद नहीं आती है। शीतली प्राणायाम करें, सोने से पहले त्राटक करें, है ना, तो निश्चित मानिए त्राटक और भ्रामरी प्राणायाम का कॉम्बिनेशन अगर आप सोने से पहले 5 मिनट करते हैं तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। आपके नींद संबंधी जो समस्या है वो समस्त दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट स्लाइड। कुछ मुद्राएं हैं, हस्त मुद्रा, जैसे हम अभी लोअर एब्डोमिनल रिगार्डिंग एरिया जो हमारा महिलाओं के लिए विशेषकर उनसे संबंधित है, तो उद्यान बंद, मूल बंद की प्रक्रिया, जिस उद्यान बंद यानी कि सांस को पूरा बाहर निकाला और अपने पेट को पीछे की तरफ खींचा, रेक्टम मसल्स को ऊपर की तरफ खींचा, तो एक गड्ढा सा पेट में बन जाता है, उसको बोलते हैं उद्यान बंद। लोअर एब्डोमिनल रीजन के लिए ये बहुत ही, उसकी मांसपेशियों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। उसी के साथ साथ कुछ हस्त मुद्राएं हैं जो हमारी प्राणिक ऊर्जा को एनर्जाइज करने में सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ध्यान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, नियमित रूप से अगर हम इस ध्यान को करते हैं तो हम शारीरिक मानसिक रूप से अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ध्यान के लिए यह भी माना जाता है कि ध्यान करें किसका या क्या करें, वास्तव में ध्यान तो स्वतः होने की चीज है। हम जो करते हैं धारणा, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन स्वयं होता है, उसे करने की जरूरत नहीं है, वो हो जाता है। तो जब हम कंसंट्रेट करते हैं किसी भी चीज में, योग सूत्र में महर्षि पतंजलि जी ने कहा, बहुत सारी टेक्निक बताई अपने मन को शुद्ध करने के लिए, चित्त को शुद्ध करने के लिए, अंत में ये भी कह दिया यथाभिमत ध्यान द्वा। आपको इनमें से अगर कोई टेक्निक समझ नहीं आ रही है तो आप अपने को तैयार करने के लिए आपका जिसमें भी मन लगता है आप उसी पे कंसंट्रेट कर लो, एटलीस्ट आपके मन की ट्रेनिंग हो जाएगी, आप फोकस करना सीख जाओगे, है ना। तो जब यहाँ से हम बात को शुरू करते हैं तो उसके फिर इम्प्रूवमेंट और इफेक्ट हम देखते हैं, तो वो फिजिकल रिलैक्सेशन हमें देता है, इमोशनल रिलैक्सेशन देता है, और हमारा जो ब्लड प्रेशर हाई और लो का जो प्रॉब्लम है वो सब उसको मैनेज करने में योग मेडिटेशन हमें सपोर्ट करता है, कॉन्सेंट्रेट डेवलप करने में, कनेक्ट करने में, रिलैक्स, ये सारी चीजों में, है ना। तो ये सारी जो फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स है उनको कंट्रोल करने में मेडिटेशन बहुत ही सहायक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें कुछ रिसर्चेस जो हुई है पिक्चर के माध्यम से मैं समझाना चाहूंगी। तो ब्रेन फंक्शन है, वो सारे ब्रेन फंक्शन और एक्टिविटीज अगर हम मेडिटेशन करते हैं उससे इम्प्रूव हो जाती है ना। नेक्स्ट स्लाइड।
ब्रेन का सिंक्रोनाइजेशन, आप देखिए 2 पिक्चर यहाँ है, ये भी फाइंडिंग है रिसर्च की कि जब मेडिटेशन नहीं करते थे तो क्या है, ब्रेन जो पैटर्न है वो कितना वीक फंक्शन कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे 15 मिनट और 25 मिनट तक हमने मेडिटेशन करना शुरू किया तो कितना सिंक्रोनाइजेशन हो गया, जो कि हमारी ब्रेन पावर को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर इसके जो बेनिफिट है वो लर्निंग पैटर्न में और डिसीजन मेकिंग में, मेमोरी इंप्रूव करने में और इम्प्रूव रिएक्शन टाइम भी मेडिटेशन के थ्रू हम इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही जो मेंटल डिसऑर्डर है वो सब रिड्यूस होते हैं और मूड स्विंग की जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाती है और ये पॉजिटिव हेल्थ डेवलप करती है। नेक्स्ट स्लाइड। ये अभी हमने बेनिफिट्स की बात करी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसी के साथ साथ डाइट, क्योंकि फिजिकल बॉडी में डाइट एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। गीता में कहा भी गया है, युक्त अच्छे स्वास्थ्य के लिए सिम्टम्स बताए हैं, हेल्पफुल टिप्स बताई है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखा। अगर हम बिल्कुल परफेक्ट वे में, है ना, डाइट लेते हैं, हम परफेक्ट वे में अपनी एक्टिविटीज करते हैं, हम जो रिक्रेशन टाइम है उसको इम्प्रूव करने के लिए उस पॉजिटिव वे में उसको यूज करते हैं और साथ ही साथ अच्छी नींद लेते हैं, तो हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं, है ना। कह रहे हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, संसार में जितने भी क्रियाएं हैं करने के लिए शरीर ही एक माध्यम है, इसीलिए उसका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। शरीर में ही अच्छा मन रहता है, अच्छा मन अच्छे शरीर को भी इफेक्ट करता है। शरीर और मन का बहुत गहरा संबंध है, तो इन दोनों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। जब हम ऐसे पॉजिटिव इफेक्ट्स एक्टिविटीज करते हैं तो हम हेल्दी बॉडी रख सकते हैं। इसी के साथ इमोशनल डेवलपमेंट की बात भी की गई है कि हम मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम, यानी कि सुखी व्यक्ति के साथ मैत्री का भाव, जेलस भाव नहीं, मैत्री का भाव रखना। ये टिप्स हैं कि हम अपने को, अपने बिहेवियर को, अपनी इमोशनल मेंटल हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और जो दुखी व्यक्ति हैं उनको इग्नोर नहीं करना है, उनके प्रति हेल्पिंग नेचर, उनके लिए मर्सी रखनी है ना। मुदिता, जो पुण्य आत्माएं हैं, संसार में अच्छा कर्म कर रहे हैं तो उनको लेग पुलिंग नहीं करनी है, इवन उनको मोटिवेट करना है, उनको सपोर्ट करना है, उनको देख के खुश होना है कि हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जबकि जो विकृत और विक्षिप्त चित्त वाले लोग हैं वो इनके विपरीत कार्य करते हैं। कुछ अच्छा कर रहा है तो जेलस फील करेंगे, कुछ अच्छा कर रहा है तो लेग पुलिंग करेंगे, तो वो सब नहीं करनी। अपनी प्रवृत्ति को, सोचने समझने की तरीके को बदलना है। और जो अपुण्य आत्माएं हैं, बुरे लोग हैं, बुरा काम कर रहे हैं, उनको उपेक्षा करो। उनकी ज्यादा चर्चा करेंगे आप मानसिक रूप से उनसे ज्यादा कनेक्ट होते चले जाएंगे। तो पॉजिटिव थॉट रखना है तो पॉजिटिविटी पे फोकस करना है, नेगेटिविटी पे नहीं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसी के साथ साथ अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की बात की गई है। यम सोशल डिसिप्लिन, हमें समाज में रहना है इन वायलेंस, अहिंसा, सत्य, झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिस हैं जो समय की सीमा है, इसीलिए बहुत डिटेल में सब कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने डिस्प्ले किया है कि सच बोलो, अननेसेसरी स्टोर। गृहस्थ में रहते हुए भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है अगर वो संयम के साथ जीवन को जीता है, जिससे उसकी शारीरिक मानसिक हेल्थ भी स्टेबल होती है। नेक्स्ट स्लाइड। ऐसे ही अपने आप को हेल्दी रखने के लिए शौच, संतोष, पेशेंस, है ना, आप जितना है जो है उसमें संतोष रखो और अपने 100% एफर्ट के साथ अपना योगदान दो। उसके साथ ही साथ ईश्वर प्रणिधान, सरेंडर टुवर्ड्स गॉड, है ना। इमोशनल हेल्थ को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी। हम कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, हम कितना पॉजिटिव एक्ट सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, कितना नेगेटिव कर रहे हैं, उसको, उसके प्रति अवेयरनेस रखनी है। नेगेटिविटी को कम करना है, गलत आदतों को, गलत विचारों को कम करना है, अच्छे विचारों को बढ़ाना है। ये सब हमारी सेल्फ डिसिप्लिन जो हैबिट्स हैं अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसके साथ जो डाइटरी पैटर्न जो मैंने पहले बताया, युक्ताहार मतलब बैलेंस डाइट खानी है, नेचुरल डाइट खानी है, जंक फूड अवॉइड करना है। हम जो क्रिएट करते हैं टेस्ट,
वो अवॉइड करना है। जितना नेचुरल फूड लेंगे वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड। उसके साथ ही साथ जैसे बीइंग अ वुमेन एक कैल्शियम रिच डाइट लेनी जरूरी है। मिल्क प्रोडक्ट लें, स्प्राउट्स लें, और उसके साथ साथ आंवला जैसी चीजें अपनी डाइट में जरूर रखें। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा और हमारी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही, क्योंकि कैल्शियम तो फीमेल्स के लिए वैसे भी जरूरी है। और जो एक संतान उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण रोल जो एक महिला प्ले करती है, उसके लिए उसका शरीर धीरे धीरे कहीं ना कहीं क्षय भी होता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक महिला के लिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है परिवार के लिए, समाज के लिए। तो उसको बनाए रखना है, तो अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा पाए। तो अगर आप ये सब पैटर्न जो मैंने बताए, प्रैक्टिसेस जो बताए, उनको फॉलो करते हैं, तो निश्चित मानिए योग हमारे जीवन के लिए, एक महिला के जीवन के लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को शांति पाठ से विराम देती हूँ, जिसका भाव है हम सब सुखी रहें। योग अकेले की ग्रोथ की बात नहीं करता है। जैसे कि इस बार के IDY के योगा थीम भी रहा है कि योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। तो हम सब एक समूह है, एक परिवार है, और जब हम कुछ करें तो जनहित के हिसाब से करें, जिससे सबका कल्याण हो, सभी के कल्याण की भावना करें। जब सब सुखी रहेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे। हमारे आसपास लोग दुखी हैं तो हम भी सुखी से जीवन नहीं जी पाएंगे, है ना। तो आज के इस कार्यक्रम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, और साथ ही जो 1 दशक पूरा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, उस सभी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शांति पाठ से हम इस अपनी वाणी को विराम देंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। Thank you, Dr. Indu, for sharing your knowledge and expertise with us today. Your session was truly enlightening and rejuvenating. I shall now invite Dr. Vandana to call upon our next speaker, please. Thank you, ma'am. It's an honor to welcome Dr. Sindhul Chaudhary. Can we have a CV, please? Yes. So he is consultant naturopathy and yoga at ABVIMS and Dr. RML Hospital, New Delhi, and the Central Council for Research in Yoga and Naturopathy in the Ministry of Ayush. Welcome, sir. सभी को नमस्कार and good evening to all, and I would like to thank to Delhi Menopausal Society and Dr. Renuka and Dr. Preeti and Dr. Vandana ma'am to invite me here as a speaker to enter the role of yoga on menopause. So I'm very delighted to have you join me here on this prestigious webinar on the occasion of International Day of Yoga. And in this session, we will discuss and enlighten the role of yoga on the menopausal and premature menopausal symptoms. So firstly, we will discuss the specific topic of this session is how chair yoga works in menopause, because this is a sedentary lifestyle. So you don't have time to do yoga and asanas and yoga practices and meditation. So in this session, we will guide you and taught you about chair yoga, how helps you in menopause. So we start, let ma'am discuss about very wonderful presentation
about menopause symptoms and how yoga works and asanas, kriyas and meditation. So menopause symptoms like hot flashes and sleep disturbances and mood changes. And there is a research that 1% population who have menopause, they have, उनको मतलब 40 की एज से पहले ही हो जाता है, तो वो एक प्री मैच्योर मेनोपॉज है। तो जैसे बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम रिलीफ करना चाह रहे हैं पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स को, ठीक है। उसमें तो हम अगर योगा करते हैं तो रिलीफ तो मिलेगा आपको, बट अगर हम पहले से ही अगर योगा कर रहे हैं तो जो प्री मैच्योर मेनोपॉज है जो 40 की एज में आ रहा है, जो एग्जैक्टली अराउंड 50 के अराउंड होना चाहिए, 48 और 50 जो भी जो एज है उसमें होना चाहिए, तो हम उससे रिलीफ मिल सकता है हमको, ठीक है। तो हम अब चेयर योगा शुरू करते हैं। तो मेरे साथ में मेरी थेरेपिस्ट हैं राखी चटर्जी, जो कि डेमोस्ट्रेट करेंगी कुछ आसनास जो कि हम चेयर पे और ऑफिस में भी अगर बैठे हैं तो अराउंड 20 मिनट्स में हम उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो राखी डेमोस्ट्रेट करेंगी आसनास। आप चाहें तो आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, अपनी डे लाइफ में इनको रूटीन में ला सकते हैं। तो firstly we'll do breathe in and breathe out breathing exercises. So in this you have to straight your back and neck, then you have to inhale deeply and exhale very slowly. Inhale deeply and exhale very slowly. So I would like to tell that how it works. Inhale deeply and exhale very slowly. So oxygen supply is very important to our body, like inhalation, proper inhalation, and slowly exhalation. So ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी को पूरी तरीके से मिलेगी तभी तो हमारे जो ऑर्गेनिक फंक्शन है वो प्रॉपरली चल पाएंगे। जैसे कि जो ऑर्गेनिक चेंजेस होते हैं मेनोपॉज के सिम्टम्स में, जैसे कि मूड चेंजेस वगैरह हो रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो हम प्रॉपर ब्रीदिंग इन एंड आउट करेंगे, मतलब इनहेलेशन एक्सहेलेशन प्रॉपरली करेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर ये प्रैक्टिस हम कर रहे हैं तो हम यू हैव टू डू ऑन 5 टाइम्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सो then next we are doing the Parvatasana. So raise your hand at the shoulder level and join your hand at the above the head and stretch your arms. Try to touch your both the arms to the ears. So ये कैसे वर्क करता है हम इसको देखेंगे। जो हमारी फ्लैंक रीजन है और जो हमारी आर्म्स है वो स्ट्रेच हो रही है, और इसमें एक रिलीफ इसमें होता है कि मतलब ये जो काम करता है कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता है। जैसे कि मेनोपॉज के सिम्टम्स में एक चीज होती है ना कि मूड चेंजेस हो रहे हैं, तो मूड चेंजेस कैसे हो रहे हैं कि हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन होता है। तो इस आसन से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इम्प्रूव होगा। और जैसे कि ये प्रैक्टिस कर रही है तो आप देख पा रहे होंगे कि जो नर्व्स हैं और मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो रही हैं, तो एक जो आपकी बॉडी में स्टिफनेस है उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो ये 10 काउंट तक करनी है, अराउंड 10 सेकेंड्स तक, और then you have to relieve with exhalation, slowly down your hands at the shoulder level, then down your hands with exhalation. So you have to do 3 times. Now we have very short of time, so we will do for next Ardha Kati Chakrasana. So Ardha Kati Chakrasana, you can see my yoga therapist on the screen. Raise your right hand above the head, then tilt towards the left side. So how it works, it stretch your flank region, stretch your arms, and stretch your, or it improves the organic function of your abdomen. So it works on एक बोलते हैं ना, जैसे कि मैं अभी नेक्स्ट भी बताऊंगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है वो अगर डेफिशिएंसी हो रही है एस्ट्रोजन की, मतलब मेनोपॉज में क्या होता है, एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, एंड्रोजन्स बढ़ जाते हैं, तो क्या होता है कि इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। उससे क्या होगा, इंसुलिन की रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो मोस्ट कॉमनली होता है कि डायबिटीज होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो उस को हम ये कुछ आसनास हैं उससे हम रिलीव कर सकते हैं। देन यू हैव टू विद एक्सहेलेशन यू हैव टू रिलीज, देन वी विल गो फॉर नेक्स्ट, इट्स
पादहस्तासन, इसको आप दूसरी साइड से भी कर सकते हैं. You can do raise your left hand above the head and tilt toward the right side. So similarly, you can do from both the sides, right side and left side. So tilt it towards the right side when you raise your left hand. So release your hands down with exhalation and relax. हर प्रैक्टिस के बाद में आपको रिलैक्स भी करना है, ठीक है, जिससे कि आपकी जो बॉडी है और आपको फील भी करना है कि आपने कहाँ पे आपको स्ट्रेच फील हुआ है. जैसे कि बोलते हैं ना कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, तो वो आपको फील करना है. एक ब्लिसफुल स्ट्रेचिंग होती है ना, उसको आप फील करना है. देन वी विल डू फॉर नेक्स्ट इट्स पादहस्तासन. पादहस्तासन इज अ रेज योर हैंड्स अबव द हेड and bend forward and try to touch your toes with both the hands, and with the exhalation raise your hand, come up. With exhalation, with inhalation come up, and with exhalation down your hands and relax in sitting position. So you can do it. Then we will go for next is Vakrasana. Vakrasana, it's helps you in diabetes. So post-menopausal symptoms, like मैंने अभी बताया जैसे आपको कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाती है, तो उसमें हम अगर ये चीज करते हैं तो आपको उसमें रिलीफ मिलेगा. वक्रासन, परफॉर्म. Place your right hand on the left knee and bend backward. So you have to see at the backward. During the practice, your breathing should be proper. Don't you have to control your breath. So with exhalation, reverse back your position. Then do it from another side. Place your left hand on the right knee and see at the back. With exhalation, reverse back your position. Now we will go for next. It's waist rotation. Waist rotation on chair, you have to see on. आप देख सकते हैं कि it improves the churning of your intestines. It improves the intestinal movements. It improves the constipation, and it improves the release your stiffness on the back. तो इससे सारे सिम्टम्स हैं जो मेनोपॉज में हो सकते हैं, उनसे आपको ये रिलीफ मिलेगा. तो वेस्ट रोटेशन आप कर सकते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. और ये आपको अराउंड 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करना है. और आपकी ब्रीदिंग प्रॉपर रहेगी, इसमें आपको होल्ड नहीं करना है ब्रीथ को, ठीक है. नाउ रिलैक्स. नाउ विल गो फॉर पवन मुक्त आसन. पवन मुक्त आसन जो मेनोपॉज के सिम्टम्स में कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आपको उसमें हेल्प करेगा. आप वन लेग से भी कर सकते हैं, बोथ लेग से भी कर सकते हैं. रेज योर राइट नी and hold your right knee with both the hands and try to touch your right knee at the chest. तो ये आपको इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स में और कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करेगा. Now with exhalation, release your leg. Now do it from another side, from the left side. With inhalation, raise your left knee, bend your left knee and touch to the chest. With exhalation, release and relax. You can do from both the legs. If you have a back problem, you can support your back from the chair, your back side of the chair. So with exhalation, release and relax. Now we'll go for Bharadwaj Asana. This is Trikonasana. Trikonasana हम चेयर पे कैसे कर सकते हैं? You can see
Raise your both the hands at the shoulder level and tilt towards the first left side. Then try to touch your hand to the foot and try to gaze your right hand at the above your head. So you can do it with exhalation. Release your position with exhalation. Now do it from right side. Now we'll go for next. Release your position with exhalation. Now go for Veerbhadrasana. Veerbhadrasana is a it's also called like warrior pose. जैसे कि एक सिम्टम होता है बोन मास डेंसिटी, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है मेनोपॉज के मोनोपॉज के टाइम पर, तो वीरभद्रासन इसमें हेल्प कैसे करेगा वो मैं बताता हूँ. बोन मास डेंसिटी जो कम हो जाती है उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है. तो हम क्या करेंगे, आपको स्ट्रेन देना है, मतलब स्ट्रेस देना है हैवी बोन्स के ऊपर. उससे क्या होगा, बोन फॉर्मिंग सेल्स जो हैं वो बोन की डेंसिटी को बढ़ाने में हेल्प करेंगे. तो उस सिम्टम से हमको रिलीफ मिल सकता है अगर हम ये डेली प्रैक्टिस करते हैं तो. नाउ release your posture with exhalation and you can do it from another side. Raise both the hands at the shoulder level with an inhalation. Now with exhalation release the pose. Now we'll go for Udyan Bandh. Udyan Bandh is a you are unable to see but you can feel if you are doing जैसे कि you have to inhale and constrict your lower abdomen. Constrict your lower abdomen. It works on celiac trunk. They have जहाँ पे बहुत सारी नर्व्स होती हैं वो हमारी ऑर्गेनिक फंक्शनिंग को इम्प्रूव फंक्शनिंग को बढ़ाने में हेल्प करेगा. जो स्टिमुलेशन आएगा नर्व्स के अंदर वो उसमें हेल्प करेगा. नाउ you have to control your breath when you constrict your lower abdomen, then release with the exhalation, and you can do it for about 5 to 10 times. Exhale and release. Now we'll go for next. Now we'll go for pranayam, nadi shuddhi pranayam. First you have to make a nasikagri mudra. Place your index finger and middle finger at the root of the thumb. Then inhale from left nostril and exhale from right. Then inhale from right, then exhale from left. This is one round. Now you, when you are practicing, you have to do 9 rounds. Okay. Now we'll go for next. It's Shitli Pranayam. Shitli Pranayam is a cooling pranayam. You can see, make a tube with your tongue and inhale from with this tube and exhale from the nostrils. When you inhale, feel the coolness on your mouth and your walls of your tongue. And when you exhale, feel the warmness on your rolls of your nostrils. So it improves in menopause symptoms like hot flashes. It removes the heatness and it regulates the temperature of your body. It's also called the thermoregulation. So we'll go for next. You when you are practicing, you can do it like 9 rounds. Now we'll go for next pranayam. It's Bhramari pranayam. Plug your ears with both your thumb. Now with inhalation, then with an exhalation, make a humming bee sound. You can, when you are practicing, you can do this practice for 9 rounds. Okay, Raki, please. Now release. अब ये सारी चीजें हमने प्रैक्टिस देख ली.
जैसे कि हमने ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट देखा, पर्वतासन देखा, अधकटी चक्रासन, पादहस्तासन, वक्रासन, वेस्ट रोटेशन और पवन मुक्त आसन, भारद्वाज आसन, वीरभद्रासन, उद्यान बंद, नाड़ी शोधन, शीतली और ब्राह्मणी। ये प्रैक्टिसेस हैं। ये प्रैक्टिसेस हमने चेयर पे बैठे बैठे कर ली। ठीक है, अगर आप ऑफिस में भी हैं, इसको एक गवर्नमेंट की मतलब गवर्नमेंट ने ऐसे प्रमोट भी किया था कि योगा एट वर्क प्लेस, जो टीचर्स हैं या फिर जो एमएनसी में काम कर रहे हैं वो इसको ऑफिस में बैठ के भी कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो हम चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, जो योगा एट वर्क प्लेस में आती हैं। बट मैंने आपको सिर्फ वो बताई है जो मेनोपॉज में हेल्प करेंगी, मेनोपॉज के सिम्टम्स में हेल्प करेंगी। अब मैं आपको इनकी फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी बताऊंगा कि ये कैसे हेल्प करेंगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आसनास डायबिटीज में हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि वक्रासन और अर्धकटी चक्रासन। तो ये मैंने बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, देन इंसुलिन सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं आफ्टर मेनोपॉज। मतलब नॉर्मल लाइफ में तो मतलब डायबिटीज के और भी रीजंस कॉजेज हो सकते हैं, बट आफ्टर मेनोपॉज मेनली ये रहता है। तो इसमें ये हेल्प करेंगे। देन उसके बाद बोन मास डेंसिटी का मैंने बताया, जैसे कि आपको बोन मास डेंसिटी कम हो जाती है, तो हम जो बोन्स हैं उस पे स्ट्रेन देके, स्ट्रेस देके, तो बोन फॉर्मिंग सेल्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं कि बोन डेंसिटी को बढ़ाने के लिए। और अब मैं सबसे बड़ा फैक्टर लेकर आऊंगा ईजी का, जो ईजी वेव्स होती हैं, अल्फा बीटा डेल्टा थीटा गामा वेव्स जो होती हैं। ठीक है, अब उसमें स्ट्रेस और ये सारी चीजें तो अलग इम्पैक्ट हो गया, बट जो डेल्टा वेव्स होती हैं, डेल्टा वेव्स मेनोपॉज के टाइम पर अफेक्ट सबसे ज्यादा होती है, जिसमें कि हमारा स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा अगर डेल्टा वेव्स की पावर, जो फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, आप सो तो रहे हैं बट आप कंप्लीटली स्लीप नहीं ले पा रहे हैं मेनोपॉज के टाइम। ये सारे मेनोपॉज के सिम्टम्स में ही मैं इंक्लूड करके बता रहा हूँ। तो डेल्टा वेव्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो क्या होगा, उसकी पावर बढ़ गई, तो आप सो तो रहे हैं लेकिन उतना प्रॉपरली आप स्लीप नहीं ले पा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, वो डायरेक्टली हमारी किस पे, वेस्मोटर सिम्टम्स पे अफेक्ट करता है। वेस्मोटर सिम्टम्स क्या होते हैं, हॉट फ्लैशेस। तो ये एक इनडायरेक्टली हमें उसमें मेनोपॉज सिम्टम्स में अफेक्ट कर रहा है। तो हम इसको मतलब सही कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने भ्रामरी प्राणायाम जैसे मैंने आपको बताया, बट इसमें मैं आपको एक एडिशनल प्रैक्टिस भी बताना चाहूंगा जो ईईजी वेव्स में होती है, वो है योग निद्रा। तो योग निद्रा आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि उसके लिए आप एक इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है, बट अगर आपके पास इंस्ट्रक्शंस नहीं है और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है, तो आप नाइट में यूट्यूब पर योग निद्रा का 40 मिनट्स का पूरा एक प्रैक्टिस है, उसको चला के रख सकते हैं साइड में, और फिर उसकी इंस्ट्रक्शंस को सुन सकते हैं। और जो आपकी जो ईईजी वेव्स का पैटर्न जो डिस्टर्ब हो गया है मेनोपॉज के टाइम पर, तो उसको आप एक मतलब रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक वो एडिशनल प्रैक्टिस है चेयर योगा से अलग, मैंने जो आपको बताई है। देन मैं आपको और जो मेडिटेशन से और प्राणायाम से जो रिलीफ मिल सकता है, वो जैसे कि आपके एंडोर्फिन्स होते हैं, सेरोटोनिन होता है और मेलाटोनिन होता है, ये जो हार्मोन्स होते हैं, नींद के लिए होता है मेलाटोनिन। तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो फॉर लाइक मेडिटेशन एंड भ्रामरी प्राणायाम, ये आपकी मेलाटोनिन और सेरोटोनिन और में हेल्प करेंगे, रिलीज सिक्रेट करने में, इसके रेगुलेशन में हेल्प करेंगे। तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। नींद अच्छी आएगी तो जो बीटा वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी थी, जो बढ़ रही थी, जो पावर बढ़ रही थी, जिसकी वजह से हॉट फ्लैशेस हो रहे थे, वो रिलीव हो जाएंगे। ठीक है, और जो एंडोर्फिन्स हैं, जो फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे तो आपको एक फिजिकली रिलीफ मिलेगा। जैसे कि योगा बोलते हैं ना, मैम ने बहुत अच्छे से बताया है, डॉक्टर इंदु मैम ने, कि योगा फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल लेवल पर काम करता है। तो फिजिकली सिम्टम्स भी हैं मेनोपॉज के टाइम पर, और मेंटल सिम्टम्स भी हैं, मूड स्विंग्स हैं, और इमोशनल सिम्टम्स भी होते हैं, और सोशल लाइफ भी अफेक्ट होती है।
ठीक है, ये मून चेंजेस हो रहे हैं बार बार, तो लोग थोड़ा सा कटने लग जाते हैं आपसे, सोशल लाइफ भी अफेक्ट हो जाती है। तो ये सारी चीजें आप मेडिटेशन और जो मैंने ब्राह्मणी प्राणायाम बताया, और मैंने एडिशनल प्रैक्टिस उसमें ऐड करी है योग निद्रा मेडिटेशन, उससे भी आप रिलीफ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं चेयर योगा पे, और ये सारी जो फिजियोलॉजी मैंने बताई है, इस पे कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वो पूछ सकते हैं। हाँ डॉक्टर सिंधुल, मैं एक क्रिया जो शीतली प्राणायाम की आपने करी है ना, मतलब जो हाँ जी। बताई थी, डेमो हुआ था, वो हाँ जी। उसकी टेक्निक को जानना चाहूंगी। आप कैसा करवा रहे हैं? ट्यूब नुमा आकृति बनाई और हाँ जी। उससे श्वास को ली, फिर फोल्ड करवा रहे हैं जीभ को अंदर, ऐसा? नहीं नहीं नहीं, ट्यूब को फोल्ड करना है, पहले ट्यूब बनाना है, फिर इनहेल हाँ। करना है, फिर एक्सहेल करना है विद द नॉस्ट्रिल्स। हाँ, एक्चुअली मुझे डेमो में ऐसा लगा कि आप ट्यूब इसके बाद नहीं शायद इस तरह से कुछ फोल्ड कर रहे हैं, तो मेरे को नहीं एक बार को डाउट क्रिएट हुआ थोड़ा सा। नहीं, वो इनहेल करना है विद द ट्यूब, देन हाँ। क्लोज योर माउथ, देन यू एक्सहेल विद द नॉस्ट्रिल्स। एक बार मैं करके बता रही हूँ, आप बताना Sure, ऐसे ही sure. करवा रहे हैं। हाँ, श्योर। या ये परफेक्टली मैम। टेक्निक, हाँ एक्चुअली वो मुंह खोल के शो हो रहा था कि जब, हाँ, तो मेरे को लगा कि शायद टेक्निक अलग ना जा रही हो। No. ठीक है, इट्स ओके। Okay. Thank you, ma'am, for correct me. You are a very senior for me. So, थैंक यू सो और- मच, थैंक यू सो okay. मच। और किसी का कुछ डाउट है, क्वेश्चंस हैं या कुछ डॉक्टर physiology से related? सिंदूर, चेयर योगा के लिए चेयर को किसी पर्टिकुलर हाइट पे होना होता है या हम कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं? नहीं, चेयर मैम, योगा कोई एक मैम, अप्रोक्सीमेट? मैम हमारा जो हिप पोर्शन sorry. का जो एंगल है वो 90 डिग्री पर होना चाहिए, बैक और हिप का जो पोर्शन है ओके 90 डिग्री और पर। कोई हाइट और फ्लोर से कोई हाइट भी, इसकी कोई पर्टिकुलर हाइट होनी चाहिए जो अप्रोप्रिएट होती है चेयर मैम, योगा करने के लिए? it's all depend on the height of the patient, मतलब practitioner, sorry। ओपीडी में हम कर सकते हैं। But जी मैम, कर सकते हैं। yeah, Okay. but Okay. as You're of both the- in our plastic chairs which are available, no, that is okay. That's okay. Oh, yes ma'am, Yeah. it's okay, but your both the feet should be placed on the ground. Right, exactly. And it should not have wheels. The chair should not have wheels, and it will move back. Yes. Yeah. It's a Yes. stable chair. Yeah, stable chair. Our OPD chairs are good enough. Yeah. Yeah. So, Nice. Dr. Indu and Dr. Sindul, it was really very, very informative session. And for last many days, we are discussing these and we are getting demonstration of all this. So we have learnt something. So we are just having recapitulation of all this. In the morning today also, we had our physical session. We also did yoga with chair yoga and like that. And for last 10 days, when we are having online sessions, we were enjoying all this. So we have learned how to inhale and exhale and everything and how to work out. So thanks a lot. It was really very, very informative session. And thank you, Renuka and the whole team of Delhi Menopause Society for inviting us for joining this webinar. Thank you, ma'am. Thank you for your valuable time. And I hope we are all healthier next year with doing so much of yoga. Nice. I think it was a very interactive session. And as we conclude today's session, I want to express my heartfelt gratitude to each and every one of you for joining us today. And your presence, enthusiasm, and energy has made the session really, really special. I would like to thank both our speakers, Dr. Indu Sharma and Dr. Sandul Chaudhary, for their inspiring presentations. And we are extremely grateful for your contribution. Thank you again for sharing your yoga expertise with us. I would specially thank Dr. Anita Shah, President, Indian Menopause Society, and Dr. Ragini Agarwal, Secretary General, Indian Menopause Society, and Dr. Jyoti Bhaskar, Secretary, Delhi Menopause Society. Your presence has graced the occasion, and your support means a lot to us.
And last but not the least, a huge thanks to Dr. Renuka Malik, President, Delhi Menopausal Society, and the organizing chairperson for this program for her continuous guidance and organizational skills. At the end, I would like to thank Jackson Pal to provide this platform for successfully conducting this session. Thank you all. Thanks a lot. Thank you. Thank you, Thank you. everyone. I think. Okay, thank you Thank you so everyone. Thank you, ma'am. Goodbye. Thank you, Dr. Ragini.